try to record, but recordings will not be provided. आपको class miss नहीं करना है, that is the major objective. ठीक है? So 10% of 240 ये अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं कि 10% of 240, right? मतलब ये जीरो गया. So we are actually calculating 1/10 of this, or we are dividing the number by 10. We are dividing the number by 10. Yes or no? Right? So whenever we calculate 10% of something, we are dividing the number by 10. And so effectively, when I divide this, I'll shift it by one place. When I divide it by 10, it will get shifted by one place. And so 10% of 240 will be 24. Clear? Right? What is 1%? What is 1% of 240? 1% of 240. So 1% of 240 is 1 of 100 into 240, right? So we are actually dividing the number by 100. We are actually dividing the number by 100, right? So when I divide 240 by 100, कितने digits के बाद decimal point देना पड़ेगा मुझे? बोलो, कितने digits के बाद? 2 digits के बाद, right? So 1% के लिए हम लोग 2 digits आगे आते हैं. 10% के लिए हम लोग 1 digit इसलिए लिखते हैं. I hope you are getting this point. Clear? Right? बाद में इसको लिखना, बाद में लिखो, right? हम थोड़ा अच्छे से इसको पहले कर लेंगे. देखो, if 10% of 240, if 10% of 240 24, तो 20% क्या होगा? 20% उसका 10% अगर 24 है तो 20% हो जाएगा 48. Okay. What is 2% of 240? 2% of 240. If 1% is 2.4, 2% will be 4.8. Right? Similarly, what will be 30% of 240? 10% होता है 24, 30% होगा 72. What will be 3% of 240 then? This is very much important in data interpretation also, right? So 3% will be, if 1% is 2.4, 3% will be 7.2. Now just observe here, just observe. If 20%, try to understand, if 20% is 48, if 20% of certain number, please try to understand, if 20% of certain number is 48, if 20% of certain number is 48, then 2% of that number becomes 4.8. If 30% of certain number is 72, then 3% of the same number becomes 7.2. Now tell me, if I say 60% of certain number, 60% of certain number, if it is equal to 68, right? What is 6% of the same number? What will be 6%? Very good, yes. 6% of same number will be 6.8. Okay. If I say 37% of certain number is, let's say, 592, what is 3.7% of the same number? What is 3.7% of the same number? बोलो, क्या होगा? If 37% of certain number is 592, what will be 3.7% of that number? 59.2. Very good. Suhas, very good. Right. Very good. Srinivas, very good. Right. Okay. Now, if I say, now can you tell me this? If I say 27% of certain number is 683, okay, what will be 5.4% of the same number? Approximately tell me. Approximately 5.4% of that number will be what?
if 27% of certain number is 683, 5.4% of the same number will be what? Very good, Kiran, very good. So tell me, first thing, tell me, we can say if 27% is this, sorry Kiran गलत है तुम्हारा शायद, संजना का शायद सही दिख रहा है. देखो, if 27% is 683, तो what is 2.7, what is 2.7%? 2.7% क्या होगा फिर बोलो? अगर 27% इतना है तो 2.7%, मतलब इधर एक डिजिट हम इधर लिए तो ये भी एक डिजिट इधर लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा 68.3. Now if 2.7% is 68.3, what is 5.4%? ये तो डबल हो रहा है ना, ये तो डबल हो गया, 2.7 का डबल ये. तो if 2.7% is this, तो उसका डबल मतलब इसका डबल हो जाएगा, राइट? तो ये 70 का डबल 140 होता है, 68 का डबल 136, और ये 3 का डबल 6. This will be your value. Hey, please try to get this point. अगर नहीं समझा तो प्लीज आस्क, आई विल रिपीट दिस, डोंट वरी. बट ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है परसेंटेज का, ये एक बार समझ लिया तो बहुत अच्छा, हमारा थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाता है परसेंटेज का. यस, आई विल डू दैट. पहले इसको लिख लो, मैं हम फिर से इसको थोड़ा सा ये करेंगे. आप लिखो जल्दी से. वंस यू आर डन विथ राइटिंग, प्लीज थम्स अप या कोई डन वगैरह कुछ बोल सकते, ठीक है? ओके ओके, आई डू दैट. बट ये लिखो, सबने लिखा ना? जिनको रिपीट चाहिए वो भी लिख लो पहले, ठीक है? ठीक है, ओके. देखो अभी ध्यान दो. अगर मैं बोलूं 24% ऑफ सर्टन नंबर, अगर मैं बोलता हूं कि वो है 732, right? 732. If 20% of 24% of certain number is this. If your question is, if your question is what is 4.8% of the same number? This is your question, right? Now tell me, everyone tell me, Komal, uh, Divya, Shivani, tell me, if 24% of certain number is this, what will be 2.4%? What will be 2.4% of the number, that number? 2.4% क्या होगा इस नंबर का, बोलो? अगर 24% इतना है तो 2.4% कितना होगा? 73.2. यस और नो? यस और नो, बोलो. ये यहां तक पिक्चर क्लियर है कि अगर 24% ऑफ सर्टन नंबर अगर 732 होता है तो 2.4, इसको एक डेसिमल, मतलब इसको इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, ये साइड को 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना. 24 था, 2.4 कैसे होगा? 10 से डिवाइड किया तो ये भी 10 से डिवाइड करो, 73.2 होगा ये भी साइड. समझ रहा है? ये क्लियर है सबको? वो जिन्होंने रिपीट पूछा था उनको क्लियर है? ओके. So 24% is 732. So 2.4% will be 73.2. Now if 2.4% is this, what will be 4.8% of the same number? अगर 2.4% इतना होता है तो इसका डबल है ना 4.8, इसका डबल है 4.8, इसका डबल मतलब ये भी डबल हो जाएगा. 70 का डबल होता है 140, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 146.4 is your value. There is no need to calculate the value of n. I hope you are getting my point. n को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं बनती है. इवन इफ ये कुछ रैंडम भी वैल्यूज रहा तो भी हम लोग इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं. शिवानी, if there are network issues, please try to resolve that first, ठीक है? क्योंकि ये फिर से ये नहीं कर सकते ना, समझ रहे? ठीक है. सो these are basics of calculation of percentages, right? तो अभी ध्यान दो, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि 27.5%, 27.5% ऑफ क्या लिया था हमने? 1564, राइट?
क्या है इसका वैल्यू, क्या है, लेट्स इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग इसको ऐसा ले सकते हैं कि, ध्यान दो, हम लोग 27.5% को, कैन आई राइट दिस एज 25% प्लस 2.5% ऑफ 1564? कैन आई राइट लाइक दिस? बोलो, 27.5% को हम लोग ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं, यस और नो? ओके। सो किसी का 25% निकालना मतलब क्या होता है? मुझे अगर ये स्क्वायर का 25% चाहिए, मतलब क्या है, इसका 1/4 चाहिए, ठीक है। ये 25% है, 25% मतलब 1/4 है, राइट? सो 25% इज नथिंग बट 1/4 ऑफ दिस, और वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4, राइट? इसको 4 से डिवाइड करो, 25% आ जाएगा। 4 3 जा 12, बचा 3, 4 9 36, बचा 4, 4 1 इज दिस 391. So 25% is actually 391. 25% is actually 391 of this value. Now tell me if 25% is 391, if 25% is 391, what will be 2.5%? What will be 2.5%? Bolo. 39.1. Very good. 39.1, right? So your answer will be this. तो आप इसको अप्रोक्स मतलब ये पूरा कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत भी नहीं। देखो 390 प्लस 40, 390 प्लस 40 कितना होता है? 430, राइट? सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? क्लियर हो रहा है? बोलो, लिखो इसको अच्छे से, समझो इसको। इफ यू डू नॉट गेट, प्लीज आस्क। नागेश, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? बोलो। यू कैन यूज ऑडियो ऑल्सो, कि क्या इशू आ रहा है तुम बोल सकते हो, या चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, नो इश्यूज। देखो नागेश, देखो 25% कैसे निकाला समझा क्या? 25% मतलब 1/4 होता है इसका, 1/4 मतलब 4 से डिवाइड किया, तो ये आया अपना 25%। ये तो क्लियर है? ओके। तो देखो किसी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का अगर 25%, कोई तो भी वैल्यू लेट से, जो कि यहाँ पे 1564 है एक्चुअली, राइट? 25% ऑफ दिस वैल्यू इज एक्चुअली 391. So if 25% is 391, what will be 2.5%? 2.5% of same value will be 39.1. Yes or no? This is our question. ये शिफा, ये अपना क्वेश्चन था कि what is 27.5% of 1564? This is our question. हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने ऐसे कैलकुलेट किया उसको, ठीक है? समझा क्या? ओके। ये नागेश, इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? बोलो। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो देखो क्या होता है जनरल, मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, देखो नागेश, देखो अगर मैं बोलूं कि 378% ऑफ सर्टन वैल्यू इज, लेट से 385,926, राइट? कुछ भी ऐसा मैं लिख दूं, ठीक है? तो व्हाट इज 37.8% ऑफ द सेम नंबर, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे एक डेसिमल मतलब 10 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं इन शॉर्ट, मैं ये साइड को 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक डेसिमल पीछे गया, 37.8 हुआ। ये भी साइड को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 13892.6। दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस, ठीक है? ओके ओके। अभी आप देखो, अभी आपको पता है कि आप जब शॉप में, मॉल में कहीं पे जाते हो तो यू नो वहां पे 18% जीएसटी वगैरह बोलते हैं, तो हमारे पेरेंट्स जो है हमारी तरफ देखते हैं कि 18% कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कोई रैंडम वैल्यू 536, इसके ऊपर 18% आपको निकालना है, अप्रोक्सीमेटली आपको आपके पेरेंट्स को बोलना है कि इसका 18% कितना होगा। तो बोलो अंदाजा क्या होगा? अभी आपको थोड़ा अंदाज मतलब आइडिया आ गया होगा परसेंटेजेस का।
तो क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बताना है पेरेंट्स को कि 18% कितना लगेगा जीएसटी, मतलब कितना वैल्यू लगेगा, कितना और पैसा देना पड़ेगा इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। आपको पेन पेपर नहीं आपके पास, आपको यूं ही कुछ कैलकुलेट करना है, ऐसा समझ लो। वेरी गुड, वेरी गुड शेख, वेरी गुड सुहास। अप्रोक्सीमेटली यस, अप्रोक्सीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, वेरी गुड। फिर तो हम क्या करेंगे, हम क्या सोचेंगे इसमें कि ध्यान दो अच्छे से, अभी अच्छे से ध्यान दो, एकदम एकदम अच्छे से जागते रहो, ठीक है। 18%, 18% ऑफ 536, दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ हम लोग ये 18% को ऐसा समझ सकते हैं या सोच सकते हैं, 20% माइनस 2% of 536, right? So what is 20%? We know 10% of this value कितना होता है, 10% of this value बोलो, 10% होगा 53.6। अगर 10% 53.6 होता है, 10% अगर 53.6 होता है, तो 20% होगा 106, 107 के आसपास। यस और नो, यस और नो बोलो। 20% 107 के आसपास होगा कि नहीं होगा? 20, 10% अगर 53.6 है, राइट, तो 20% होगा 107 के आसपास, ओके। तो अगर 20% 107 के आसपास है, तो 2% कितना होगा? अगर 20% 107 है, तो 2% कितना होगा बोलो? 10.7, 7. 10.7। सो आपका आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 96.34 वॉट कुछ आसपास। दिस विल बी योर वैल्यू, इतना आपको जीएसटी लगने वाला है। तो आप क्या बोलते हो कि 53 536 अगर वैल्यू, उसके ऊपर 18% जीएसटी, मतलब 10% 53.6, 20% 106, 20% 106 7 107 वगैरह है, तो 10% होगा 10 रुपए माइनस के 106 7 से, तो अपना 96 97 इतना मुझे जीएसटी लगने वाला है। दिस इज हाउ इट इज, वेरी मच सिंपल, राइट, कि इतना बहुत कुछ उसमें है नहीं, समझ लो। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो ये डर खत्म होता है धीरे धीरे, ठीक है। देखो श्रीनिवास, वन मोर क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं 1873, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगने वाला है, क्वेश्चन, व्हाट इज 18% ऑफ दिस वैल्यू? अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बोलो? ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। देखो 18% को, श्रीनिवास ध्यान दो अच्छे से, 18% को कैन बी राइट 20% माइनस 2%, कैन बी राइट लाइक दिस बोलो, हम लिख सकते हैं ऐसा? ओके, सो इसका 10% होता है 187, 10% 187, मतलब थोड़ी देर के लिए हम लोग 190 लेते हैं, ठीक है, हमने 3 ज्यादा लिया, एक्चुअली 3 ज्यादा लिया है, 190 लेते हैं। ये 10% अगर 190 है, तो 20% होगा 380, 20% 380 नहीं, एक्चुअली 6 कम होगा 380 से, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, मतलब 374 होगा, समझ रहा है? देखो हमने 190 लिया थोड़ी देर के लिए 10%, तो 20% हुआ 380, लेकिन ये +3 लिया था एक में, उसका डबल किया तो 6 एक्चुअली हमारा माइनस होगा। तो 20% अगर इतना है, तो 2% कितना होगा उसका? 2% होगा 37.4, 0.4 छोड़ दो, राइट, उसको छोड़ दो। 14 में से 7 गया 7, 4 गया 3, और ये 337 के आसपास आपका आंसर होगा। इफ यू डू इट ऑन कैलकुलेटर, देखो आप कैलकुलेटर के ऊपर भी करोगे, हमें करना 18% ऑफ 1873, तो देखो हम कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं, इधर
18%, तो 0.1 0.18 इंटू क्या नंबर था अपना 1873, तो ये 18% होगा 337.14. वी आर वेरी मच क्लोज, राइट? हम कितना अच्छे से इसको कर सकते हैं अगर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. एक मिनट में फिर से आता हूँ पीपीटी के ऊपर, राइट? तो हमारा क्वेश्चन था 18% ऑफ दिस, हम कितना इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. रफ पेज पे आपको ये नहीं करना होता है. रफ पेज पे आप सीधा ये स्टेप्स लिखते हो एंड यू गो अहेड. ठीक है, ये स्टेप्स लिखते हो, यू गो अहेड. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलो. प्रसाद, देखो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ इसको. देखो 18% ऑफ 1873, एकदम अटेंटिवली समझो इसको. ठीक है, 18% को हम लोग देख सकते हैं 20% माइनस 2% ऑफ 1873. ठीक है, ये लिख सकते हैं प्रसाद. ओके, तो भी इसका 20% हमें निकालना है. पहले इसका 20% निकालना है, तो 10% कितना होता है 187.3. 10% 187 के आसपास है, मतलब 190 के आसपास. 10% 190 है, राइट? हमने तीन ज्यादा लिया है, सोचा है, मतलब तीन ज्यादा सोचा है, वो बाद में हम देखेंगे. 10% अगर 190 है इसका, तो 20% 380 होगा, राइट? लेकिन हमने क्योंकि +3 लिया था, मतलब वो डबल किया, तो +6 का हमने एक्स्ट्रा डिफरेंस लिया, तो 380 नहीं 374 होगा 20%. यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है शारदा देवी एंड कोमल एंड प्रसाद? यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है? बोलो. ओके, ठीक है. ओके, ठीक है. ये कैलकुलेशन आपका 20% होगा इतना. अगर 20% किसी वैल्यू का 20% किसी वैल्यू का अगर 374 है, तो 2% कितना है? वो तो माइनस करना है ना हमें 18% निकालने के लिए. 20% में से 2% माइनस करना है टू गेट 18% ऑफ दैट वैल्यू. तो 20% अगर 374 है, तो 2% होगा 37.4. ये 0.4 छोड़ दो, उसका कोई ज्यादा अहमियत रहेगा नहीं. 14 माइनस 7 7, 7 माइनस 4 3, और ये तीन वैसे लिखेंगे. सो योर 18% ऑफ दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू 337. क्लियर? ओके, ग्रेट. Okay, now try this question. Someone is waiting. क्या वेट लिस्ट तो नहीं है अभी कुछ. $64.8. ओके, अरे बहुत सारे लोग हाउ टू ज्वाइन द क्लास, हाउ टू ज्वाइन, आई डोंट थिंक कुछ डिफिकल्ट ज्यादा ऐसा नहीं ना, अच्छे से होता है वो, देखते हैं. सो हम यहाँ पे ना कुछ थोड़ा समझने भी वाले. देखो दो तीन मेथड से हम लोग इसको समझेंगे, दो मेथड से हम इसको समझने वाले. ध्यान दो, एक बहुत सिंपल मेथड है, एकदम सिंपल, जो अभी हमने पढ़ा उसको ही थोड़ा सा इधर उधर करके. ध्यान दो, इंक्रीज 360 बाई 18%. सो हमारा वैल्यू 360, वी हैव टू इंक्रीज दैट बाय 18%. सो कैन आई थिंक 18% एज 20% माइनस 2%?
वैल्यू निकालने के लिए। ओके, सो इसका 20%, 10% होता है 36, 20% होगा 72। नाउ टेल मी, 20% 72 है तो 2% कितना होगा? 7.2, राइट। तो ये कितना बनेगा? 60, कितना बनेगा ये? 7 गए, 72 65 होता है 64. approximately. हाँ ठीक है, 65 approximately. So if I have to, this is 18%. So if I have to increase 360 by 18%, I have to increase it by 65 approximately. And so adding 18% of this value gives me what? 425, right? This is your answer with one of the methods. Clear? Is this method clear? Method number 1 clear? Any query here, please ask. Okay, ठीक है. Method number 2. Why we are doing this with method number 2? Just to understand this MF. MF is multiplying factor. Multiplying factor क्या होता है ये थोड़ा समझ लो, ठीक है? With this question only. This is the recommended way for such questions, but let's understand multiplying factor also with the help of this question. Now see, when I say increase 360 by 18%, percent is per 100, right? Percent is per 100. So if I say 360 को 18% of itself हमें increase करना है, right? तो दोनों टर्म्स में हमें 360 कॉमन दिख रहा है. सो व्हाट कैन आई डू इज, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 18% आई कैन राइट दिस एज 0.18, राइट? दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर. व्हेन आई इंक्रीज सर्टेन वैल्यू by 18%, that means I'll do 1 plus 18% or 1 plus 0.18. So my multiplying factor effectively becomes 1.18. So if you have access to calculators, you can simply do this way, 360 into 1.18, and you'll get the value as 425. Clear? So this is your multiplying, this is called as multiplying factor, right? तो अगर मुझे कोई तो भी वैल्यू है उसको अगर मुझे 24% से इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा? 1 प्लस 24%, 24 by 100. So 1 plus 24%, my multiplying factor will be 1.24. क्लियर? ये क्लियर हो रहा है? बोलो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, बोलो. समझ रहा है? अच्छा, अगर मुझे x जो है वो 4% से बढ़ाना है तो क्या होगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? बोलो. x को अगर मुझे 4% से इंक्रीज करना है तो व्हाट शुड बी माय मल्टीप्लाइंग फैक्टर? वेरी गुड सुहास, वेरी गुड. सो अगर मुझे 4% से इंक्रीज करना है x, सो 1 प्लस 4%, ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा. सो आई कैन राइट इट एज 1 प्लस 4%, 4 अपॉन 100 होगा 0.04, and so it becomes x into 1.04. Clear? Getting clarity on this? बोलो. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, ठीक है. अभी ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे विथ द फर्स्ट मेथड, राइट? फर्स्ट मेथड से पहले करेंगे ये क्वेश्चन. 924 देखते हैं, को हमें डिक्रीज करना है 15% से. नाउ हाउ टू कैलकुलेट 15% ऑफ दिस वैल्यू? वी नो 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 92.4. सिर्फ 10% इज 92.4. व्हाट इज 5%? हमें 15% चाहिए टोटल. ओके, तो 10 प्लस 5 करके हो जाएगा काम अपना. तो ये कितना होगा? 46.2. यस और नो? तो 15% कितना बनेगा? ये बना 8, 138.6. So we have to decrease this by 138.4. तो अप्रोक्सीमेटली भी आपने सोचा कि 140 से मुझे डिक्रीज करना है अप्रोक्सीमेटली,
तो 140 से डिक्रीज करूंगा तो मुझे आ जाएगा वो 784, राइट। सो माय आंसर शुड बी क्लोज टू 784। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ये कैसे किया हमने कि 15% से कम करना है इसको, तो इसका 15% हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 10% प्लस 5%, ऐसे हो जाएगा 15%, एंड देन वी कैन गो अहेड एंड सॉल्व इट। क्लियर? क्लियर बोलो। ओके, ग्रेट। अच्छा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना होता तो क्या करते हैं कि डिक्रीज करना है, डिक्रीज, ठीक है। सो 924 को हमें एक्चुअली डिक्रीज करना है, तो हम ऐड नहीं माइनस करेंगे, इट शुड बी डिक्रीज्ड बाय 15%। 15% से हमें डिक्रीज करना है उसको, ठीक है। सो 924, राइट, 1 माइनस 15% मतलब 0.15, मतलब 1 माइनस 0.15 होगा 0.85। So when we do this multiplication, we'll be getting approximately 785 only. Clear? Clear बोलो। तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये डिक्रीज हुआ 15% से, इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका आया 0.85, राइट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपको काफी यूज होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर है? ओके। नाउ ये कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट। ये कहाँ पे यूज होता है, उसके बाद हम थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं प्लेसमेंट पेपर में, राइट। कौन से कंपनी में कौन से टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं परसेंटेजेस के ऊपर। सो आपको एक थोड़ा वो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे अप्रोच करना है, क्या है वो, धीरे 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 आपको समझ में आएगा, राइट। बिफोर गोइंग अहेड, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्विकली। ओके, ठीक है। अभी ध्यान दो, SPC is also called as successive percentage change, right? Now, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई सैलरी है, दिस इज योर इनिशियल सैलरी, राइट। अभी क्या हो सकता है सर्कमस्टेंसेस, ध्यान दो। योर इनिशियल सैलरी, लेट से पहले साल A% से इंक्रीज हुआ, तो कुछ तो भी सैलरी बना यहाँ पे, देन सक्सेसिवली आपको इंक्रीमेंट मिला B% का, फिर से B% का दूसरे साल इंक्रीमेंट मिला, अगले साल, राइट। पहले साल ये मिला, दूसरे साल ये मिला, देन यू हैव दिस फाइनल वैल्यू। 2 साल के बाद या 2% चेंजेस के बाद या 2 इंक्रीमेंट्स के बाद योर फाइनल वैल्यू बिकम्स दिस, राइट। सो योर क्वेश्चन कैन बी, what is net percent change in the final value? What is net percent change in the final value? समझ रहा है बोलो। ये क्वेश्चन का टाइप समझा कि क्या हो सकता है, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपका कोई सैलरी है, 3 लाख का पैकेज है आपका, 3 लाख का पैकेज है, आपको पहले 5% का इंक्रीमेंट मिला, राइट। फिर आपका कोई 1 साल के बाद इतना वैल्यू हुआ, फिर सक्सेसिवली यू गॉट 8% का इंक्रीमेंट, एंड यू हैव सम फाइनल सैलरी आफ्टर 2 years. So if your question is what is percent change in your salary, what is effective percent change, what is net percent change, what is successive percent change, right, कोई भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है क्वेश्चन की। तो 2 साल के बाद या 2 इंक्रीमेंट्स के बाद आपका कितना परसेंट चेंज हुआ है, इन सच केसेस वी कैन यूज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन हम लोग ए का वैल्यू कितना है, +5, बी का वैल्यू कितना है, +8। सो यूजिंग फॉर्मूला 5 + 8 + 5 × 8 AB/100, एक सेकेंड, AB/100, राइट। सो 5 + 8 होगा 13, +8 × 5 40, 40/100.4। सो ये आ जाएगा 13.4% का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। अगर आपका कोई भी सैलरी रहने दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द वैल्यू, अगर वो वैल्यू हम पहले 5% से बढ़ाए, सक्सेसिवली वी आर इंक्रीजिंग इट बाय 8%, व्हाट इज इफेक्टिव चेंज
बिटवीन दिस इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू, इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच गिव्स अस 13.4% एज आवर आंसर। गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस, बोलो ये क्लैरिटी क्लियर है? राइट। सो एक क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर, क्वेश्चन देखते हैं, देखो ट्राई दिस क्वेश्चन क्विकली। या ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, देखो आर एस अग्रवाल बुक या इंडिया बिक्स वेबसाइट, उसमें आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखते हो, प्लेसमेंट पेपर्स में भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज इंक्रीज्ड फर्स्ट ईयर बाय 30% एंड नेक्स्ट ईयर बाय 20%, फाइंड द नेट परसेंट चेंज इन द पॉपुलेशन। राइट। तो हमें पता है कोई तो भी पॉपुलेशन था, फर्स्ट ईयर 30% से इंक्रीज हुआ, तो कुछ तो भी वैल्यू बना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर 20% से इंक्रीज हुआ, फिर कुछ ये फाइनल वैल्यू बना है। राइट। पूछा है व्हाट इज नेट परसेंट चेंज इन द, नेट परसेंट चेंज इन द पॉपुलेशन, तो ये भी सक्सेसिव परसेंटेज टाइप वाला हुआ। कैन वी यूज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हियर? यस। सो which gives us a plus b, a plus b plus ab upon 100, ab upon 100। सो 30 प्लस 20 कितना होता है? 50 प्लस ये जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, 6, विच इज 56%। ठीक है, 56%। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन देखो आप, ये भी एक तरीका है, लेकिन इतने स्वीट वैल्यूज है ना, इतने अच्छे अच्छे वैल्यूज है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे बाय द वे, कि अगर आपका पॉपुलेशन 100x है, किसी सिटी का पॉपुलेशन 100x है, तो बोलो 30% से बढ़ेगा, 30% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा पहले साल के बाद? ये पॉपुलेशन अगर 30% से पहले साल बढ़ता है तो कितना हो जाएगा? 130x होगा। राइट। अभी नेक्स्ट ईयर 20% से बढ़ा, नेक्स्ट ईयर इट विल इंक्रीज ऑन दिस वैल्यू, तो इसके ऊपर 20% कितना होता है? 10% होगा 13x, 20% होगा 26x। यस, द फाइनल वैल्यू बिकम्स 150x, 156x। राइट। सो 100x finally becomes 156x। what is net percent change? अगर 100 156 हो रहा है तो the net percent change is 56%। is this clear? is this clear? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते तरीका। यू कैन ऑल्सो यूज फॉर्मूला, यू कैन ऑल्सो गो विद दिस वे इफ द वैल्यूज आर सो स्वीट। राइट, ये स्वीट वैल्यूज थे। अगर आपका ऐसा होता ना कि ये 12% दिया है और ये 8% दिया है, तो आपको फॉर्मूला ही अच्छा लगता, फॉर्मूला ही अच्छा लगेगा। करो तो जल्दी से, क्या होगा फिर? नेट परसेंट चेंज द पॉपुलेशन, क्विकली टेल मी। वेरी गुड सुहास। 20.96। वेरी गुड। सो a प्लस बी, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सो 12 प्लस 8 होता है 20, 12 इंटू 8 96 बाय 100 विच इज 0.96। सो इट विल बी 20.96। राइट। कभी कभी आपको डिक्रीज भी आएगा क्वेश्चन, वी विल बी सीइंग इट। कभी कभी डिक्रीज भी आएगा तो आपका वो वैल्यू माइनस नेगेटिव होगा। राइट, होगा कोई क्वेश्चन शायद ऐसा। देखो ये अभी वो जो फॉर्मूला था ना, आप ये टाइप्स के क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो। राइट। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, देन वो क्वेश्चन पढ़ो। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या बोलने वाला हूं मैं। अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, ये दो वेरिएबल्स है, एंड द प्रोडक्ट इज गिवन टू मी,
प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज गिवन टू मी, ठीक है। मेरे पास दो वेरिएबल्स है, प्रोडक्ट इज गिवन टू मी, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सी वन अनाउंसमेंट, आई थॉट कि इंटरनेट वगैरह सच में कुछ लोग जेन्युइनली यहाँ पे आते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 2 दिन के लिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल करा के दूंगा, तो आपको करना है 2 ही दिन में उसको, फिर वो नहीं ले रहेगा अवेलेबल, ठीक है। तो ये एक मैं आपको एक कोऑपरेशन और वट एवर इन दैट सेंस मैं आपको कर सकता हूँ, क्योंकि सीइंग, लेकिन वो फिर वो क्या होता है रे, आप उसी भरोसे पे रहते हो रिकॉर्डिंग के। तो जिसको चाहिए वो मुझे पर्सनली बोलो, आई विल पर्सनली शेयर दैट, ठीक है। जिसको सच में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम, बट डू नॉट आस्क, ठीक है। अ, अगर दो वेरिएबल्स है आपके पास, ये एक वेरिएबल है, ये कोई वेरिएबल है, राइट राइट, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, और उनका प्रोडक्ट हमें दिया है। अभी अगर हमें बोला कि ये जो वेरिएबल है ये 1% से चेंज किया, प्लस माइनस वॉटेवर, ये वेरिएबल अगर हमने b% से चेंज किया, क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट परसेंट चेंज इन द प्रोडक्ट, नेट परसेंट चेंज इन द प्रोडक्ट। तो भी आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, राइट। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन से समझ लो। हमें बोला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12% एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 8%, find the net percent change in the area of rectangle। तो what is area of rectangle, tell me। area of rectangle का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, राइट। तो ध्यान दो, ध्यान दो, तो हमें क्या बोला है, देयर आर टू वेरिएबल्स और उनका कोई प्रोडक्ट था, कोई एरिया था पहले, इनिशियल इनिशियल वो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट मिला के एरिया आ रहा था। अभी हमने क्या किया, इसमें 12% चेंज किया और इसमें 8% इंक्रीज किया, राइट। ये वेरिएबल 12% से चेंज किया, ये वेरिएबल हमने 8% से चेंज किया। व्हाट इज परसेंट चेंज इन द प्रोडक्ट, और व्हाट इज परसेंट चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो आपका आंसर वही वही फॉर्मूला यूज होगा, 12 प्लस 8 प्लस 12 इंटू 8 बाय 100 विच गेव अस 20.96%। So the area of rectangle will change by 20.96%। Clear? Clear with this? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ लेट्स हैव अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अभी आपका, अभी हमने देखो, अभी हमने क्विकली एक बार रिकैप करते कि हमने देखो, मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने बेसिक्स ऑफ परसेंटेज देखे, कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, 10%, 20%, 37%, ये थोड़ा हमने देखा। फिर हमने ये इंक्रीज डिक्रीज देखा, उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा कि इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, ये हमने देखा। फिर हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ये फॉर्मूला देखा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, राइट। फिर वो क्यों यूज करते, कैसे दो अगर परसेंटेज चेंजेस है उसमें कैसे यूज कर सकते, वो हमने देखा। उसका और एक हमने एप्लीकेशन देखा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये एक एग्जांपल लेके हमने वो भी देखा, ओके, ठीक है। अभी हम देखेंगे थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑप्शंस आपके सामने, यू कैन गिव द आंसर इन चैट बॉक्स, राइट, वाया डायरेक्ट मैसेज आल्सो यू कैन गिव। देयर इज ऑप्शन कॉल्ड, ये पोल्स है लेकिन नहीं होता है वो पोल्स, अच्छे से देखते हैं एक बार। पोल हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, एक मिनट, एक बार पोल ट्राई करके देखते हैं क्या आता है इसका, देखते हैं। अच्छा, कैन यू सी द पोल, पोल का दिख रहा है आपको? Okay, very good. Yes, I Yes. can see 14, 16 people have marked their answer. Don't रोहन, पोल मैंने ऑलरेडी किया है इसको, ठीक है, वेरी गुड।
90% लोगों ने एकदम सही आंसर दिया, वेरी गुड। लेट अस सॉल्व इट, लेट अस सॉल्व इट। ठीक है, शेयर रिजल्ट्स देखता हूँ मैं, एक बार चेक करता हूँ क्या है शेयर रिजल्ट्स, मतलब क्या है, आपको कुछ आया क्या, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आया क्या? शेयर रिजल्ट्स बोला तो पता नहीं क्या है। ठीक है, एनीवेज काम हो रहा है अपना, चलो। अच्छा क्या था देखो, द प्राइस ऑफ अ द प्राइस ऑफ अ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 20%. If the original price is 300, what is the final price of the? Very easy conceptually question है, right? तो हमारा एक concept built up हो रहा है यहाँ पे. Okay. The price of product is increased by 20%. Okay. If the original price is 300, अगर वो 20% से increase करेंगे, तो 10% से करते तो 30 increase होता, 20% से कर रहे तो 60 increase होने वाला है. So it becomes 360. That was very simple question. Next question on your screen. I'll poll this question again. ठीक है, एक मिनट पोल कर रहा हूँ. पोल मैंने कर दिया इसको. थर्टी सेकेंड्स हो गए और आपको 15 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स टोटल दूंगा. 10 सेकेंड्स बचे. तुक्के मत मारना, नहीं आता है तो ठीक है, डोंट वरी, जस्ट एनालाइज योर सेल्फ कि हम कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, क्या हो रहा है वो. ठीक है, एंडिंग द पोल यूर शेयरिंग द रिजल्ट. रिजल्ट शेयर नहीं करूंगा, ये जरूरत नहीं वैसे मुझे लग रहा है रिजल्ट शेयर करने की. ठीक है, ओके. सो 35% ऑफ अ नंबर इज 112. देन द नंबर इज, नाउ अभी कैसे अप्रोच करेंगे इसको, पहले क्वेश्चन दिख रहा है तो हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे. 35% ऑफ अ नंबर, डू वी नो व्हाट इज दैट नंबर? वी डू नॉट नो, राइट? हमें पता ही नहीं वो नंबर क्या है, राइट? तो 35% ऑफ सर्टन नंबर इज 112. दिस इज योर drafting of the question. 35% of certain number is equal to, of n is equal to 112. So I can write this as 35% of n is equal to 112. राइट, ये मैं इधर 5 7 कर सकता हूँ, 520 कर सकता हूँ, ये 7 उधर जाके डिवाइड करेगा, 7 1 7 6. दिस n is equal to 20 into 16, 320. वो नंबर कितना मिला हमें? 320. इसमें किसी को कुछ क्वेरी है प्लीज आस्क, कुछ क्वेरी है तो प्लीज आस्क. ठीक है, चलते आगे, अगर होता है तो पूछते चलो. मतलब पोल, फिर कौन सा ऑप्शन क्या है दिखता नहीं, वो कवर कर लेते हैं क्या पोल? ऑप्शंस को कवर कर लेते हैं क्या? Yes, sir. अच्छा, होल स्क्रीन स्क्रीन कवर्ड, वो मिनिमाइज नहीं होता क्या? यू कैन ड्रैग ऑल्सो, बट आई डोंट थिंक मोबाइल पे कुछ ड्रैग होगा, एंड्रॉइड ऐप पे नहीं होगा ना फिर. ठीक है, मैं पोल क्लोज कर लेता हूँ, जान दो. Okay, let's do this. 75% of a number when added to 75 is equal to that number. What is the number? ध्यान दो अच्छे से. 75, एकदम स्टोरी के साथ जाओ, ऐसे क्वेश्चंस में एकदम स्टोरी के साथ जाने का.
75% of a number, we do not know that number, let's take that number as x. 75% of a number, right? 75% of a number when added to 75 is equal to that number. इक्वेशन क्लियर है सबको? बोलो एकदम स्टोरी के साथ हमने इक्वेशन लिखा है, क्लियर है इक्वेशन सबको? राइट, तो ये 75% इज नथिंग बट 0.75x, राइट? ये 75 इज इक्वल टू 0.75, उधर जाके माइनस होगा 0.25x बनेगा, x का वैल्यू बनेगा 75 बाय 0.25। अभी ये दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है, हम इंटू 100 करके वो डेसिमल हटा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऊपर भी इंटू 100 करना पड़ेगा। 25 1 25 3, x इज इक्वल टू 300, x इज दैट नंबर, x इज दैट नंबर। क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलो समझा ये? किसी को रिपीट चाहिए तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है? सर रिपीट करेंगे। हाँ ठीक है, देखो हमें क्विकली मैं बोलता हूँ, देखो 75% of a number, we do not know that number, so we are taking that number as x. 75% of a number when added to 75 is equal to that number, right? That number matlab that number. So 75% of a number when added to 75 is equal to that number. समझा? तो हमने x के लिए सॉल्व किया, we got 300. I hope there is no query in the calculation. Hope you got this. क्लियर? जिसने पूछा था या कैलकुलेशन में क्वेरी था, ऐसा कैलकुलेशन में भी क्वेरी तो भी पूछो कि नहीं समझा कैलकुलेशन, बोलो जल्दी से। क्लियर है ना? नहीं समझा? समझा बोलो। नहीं समझा। देखो फिर वो हमने क्या किया, बाकी लोग ये सॉल्व करो, मैं इसको समझा दो। देखो हमने क्या किया था कि ये ऐसा था अपना 0.75x प्लस 75 इज इक्वल टू x, फिर हमने ये इधर लेके गए, ये 75 इज इक्वल टू, इसमें x में से ये गया तो बचा कितना 0.25x, तो x इज इक्वल टू 75 अपॉन 0.25 हो गया, ठीक है? हम इसको इंटू 100 करेंगे क्योंकि ये डेसिमल हटेगा, इसको भी इंटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर किया है, तो अब ये डेसिमल हट जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करने से, ऊपर ये बचा नीचे 25 बचा, 25 1 25 3 300 अपना वैल्यू है। क्लियर? ओके देखते ये क्वेश्चन। If the price of petrol is increased by 20% and subsequently by 40%, if the original price was 25 per liter, then what is the final price? Now ये final price पूछा है, हमें final percentage change वगैरह नहीं पूछा है, समझ लो, ठीक है? तो हम वो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला तो टाइम पास हो जाएगा, तो सीधा समझ लो कि ओरिजिनल प्राइस हमें दिया 25 रुपए, वो ओरिजिनल प्राइस पहले इंक्रीज किया 20% से, तो बोलो ये 20% से इंक्रीज होगा मतलब कितना होगा? 10% से इंक्रीज होता तो 2.5, 20% से 5 रुपए इंक्रीज होगा मतलब 30 रुपए बनेगा। एंड सब्सिक्वेंटली बाय 40%, नाउ दिस वैल्यू इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 40%, तो अगर मैं 40% से बढ़ा दूंगा तो कितना होगा? इसका 40%, 10% 3 रुपए, 40% होगा 3 इंटू 4 12 रुपए, 12 रुपए से इंक्रीज होके 42 बनेगा। क्लियर? क्लियर बोलो सुहास, आई होप दिस इज क्लियर। ओके कोमल क्या क्या इशू था इसमें बोलो? देखो हमने क्या किया, ओरिजिनल कोई तो भी प्राइस है वो, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय, द प्राइस इज ऑलरेडी गिवन एज 25, सो 25 इंक्रीज बाय 20% एंड सब्सिक्वेंटली बाय 40%, तो अगर 25 रुपए तुम 20% से इंक्रीज करोगे, 25 रुपए 20% से इंक्रीज करोगे तो कितना होगा कोमल, कावेरी कितना होगा ये?
10% इसका होगा 2.5, 20% होगा 5 रुपए। 20% से इंक्रीज करोगे मतलब 5 रुपए से इंक्रीज करोगे तो वैल्यू बनेगा 30। सब्सिक्वेंटली इट इज इंक्रीज बाय 40%। तो ये वैल्यू 40% से इंक्रीज करोगे तो कितना होगा? 10% 3 रुपए, 40% होगा 12 रुपए से इंक्रीज करोगे। सो द फाइनली दिस वैल्यू आफ्टर दिस परसेंटेज इंक्रीज विल बिकम 42 rupees. Understood this, Komal, Kaveri? Is this clear? Yes, sir. Okay. Try this quickly. सुहास 42 आंसर है ना, तो क्या क्या तुम? एक मिनट। नो, इट इज 8 ना। वो 8 आएगा ना, 8 0.8 कैसे आएगा? 0.8 नहीं आएगा, 8 आएगा वो। मतलब वो 48 68 बनेगा। 1.68 इंटू 25। हाँ, समझा सुहास? 0.8 नहीं, 8 आएगा वो, 8। नो इश्यूज, नो इश्यूज। But very good that you are trying with another method as well. If 16% of 40% of a number, we do not know that number, let us consider the number as x, is equal to 8, the number is. एकदम easily होगा. 16% of 40% of a number is equal to 8, right? What is that number? तो हम इसको सॉल्व करना है, तो आप देखो ये 8, देखो ये इधर 1 इलेक्ट्स, तो ये न्यूमरेटर को डिवाइड करता है, हाँ, डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा मतलब इसको भी कर सकता है। 2 1 2 50 इज दिस, ये 0 0 हम कट कर सकते हैं। 4 1 4 25 इज दिस, 25 इंटू 5 125, वो उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 125। दैट नंबर इज एक्चुअली 125। क्लियर? क्लियर? कुछ क्वेरी है कैलकुलेशन में या ड्राफ्टिंग ऑफ अ क्वेश्चन? प्लीज आस्क। क्लियर? ओके, ग्रेट। चलते हैं। आज का परसेंटेजेस का, कल का रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर और पिछला वाला ये, तो संडे आपको बीच में मिलेगा। प्लीज ट्राई टू क्लियर दिस टॉपिक टेस्ट, परसेंटेजेस के ऊपर टॉपिक टेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर जो कल होने वाला है, और जो कल हुआ है उसके ऊपर जिनका बचा है, तो थोड़ा ट्राई करो कि 1-2 घंटा 1-1.5 घंटा संडे को निकालने का, राइट? तो एक अच्छा सा आपका फायदा हो जाएगा, ये जो चल रहा है ना उसका एक मैक्सिमम आउटकम आपको मिल सकता है। और ये फंडामेंटल टॉपिक्स आज भी किया परसेंटेजेस का, इफ यू हैव टाइम यू, नो इश्यूज, कल भी किया तो भी नो इश्यूज, लेकिन बहुत ज्यादा पेंडिंग नहीं रखने का इसको, ठीक है? A number exceeds 20% itself by 40, the number is. तो कोई तो भी नंबर है, कोई तो भी नंबर है, we do not, that number exceeds 20% itself by 40, मतलब उसका 20% जो है उस नंबर का, हाँ, ये नंबर उसका 20% नंबर से एक्सीड हो रहा है बाय 40। इज द इक्वेशन क्लियर टू यू? कोई तो भी नंबर है, उसका ये 20% है, और वो नंबर
उसके 20% से 20%, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, 20% ऑफ दैट नंबर इज दिस विच इज एक्चुअली 0.2x। समझा ना? ये क्लियर है? ये क्लियर है? बोलो। Okay, so x minus 0.2x is equal to 40, 0.8x is equal to 40, x is equal to 40 upon 0.8। 10 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल हट जाएगा, लेकिन ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 8185 इज दिस, x का वैल्यू आ गया 50। क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं, नंबर अपना 50 आया। इसका 20% कितना होता है? 50 का 20%, 50 का 20%, 10% होता है 5, 20% होता है 10। सो नंबर एक्सीड्स इट्स 20% बाय 40। वो जो नंबर है वो उसके 20% से 40 से ज्यादा है। यस, एकदम सही बोल रहा है। यू कैन ऑल्सो डू दिस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, राइट? इफ नॉट बाय दिस, बट दिस इज ऑल्सो वेरी मच अंडरस्टैंडेबल वे। क्लियर? गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस? बोलो। Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस बूस्टर ऑन परसेंटेज। थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आप बहुत ज्यादा देखोगे इंडिया बिक्स, आर.एस. अग्रवाल प्लेसमेंट पेपर्स में, आप ये टाइप के क्वेश्चंस काफी देखोगे। ठीक है, देखते हैं। पढ़ो पहले क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं आपको जुगाड़ देता हूँ। हाँ, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो, increase in cost of cooking oil by 40%, the consumption of oil by a consumer is decreased by 20%. Then the expenditure for oil of that consumer will be changed by, ठीक है? Yes, Rahul, I will give that. The expenditure of oil of that consumer will be changed by, ठीक है? ध्यान दो, ध्यान दो। ये क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है वो समझ लो पहले। ठीक है, कि आपका कॉस्ट ऑफ कुकिंग कुछ होता है, राइट? लेट से कॉस्ट कुछ है 100 रुपीज, राइट? आपको 10 लीटर लगता है, ये आपका कंजम्पशन है, 10 लीटर आपका कंजम्पशन है। तो आपका कितना खर्चा होगा कुकिंग ऑयल के ऊपर पर्टिकुलर मंथ में? इन अ पर्टिकुलर मंथ आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा? कॉस्ट कुछ है, कंजम्पशन कुछ है। So can I say cost into consumption is equal to expenditure? Can we say this? Can we say this? बोलो। कॉस्ट, पेट्रोल भी आप कंसिडर कर सकते हो। पेट्रोल आपको लगता है, लेट्स से पेट्रोल का प्राइस है 106 रुपए, 100 रुपए, वॉट, तो 106 रुपए का पेट्रोल आपको लगता है मंथ में 10 लीटर का पेट्रोल, तो 106 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन प्लेसमेंट पेट्रोल। ठीक है, यस सुहास, यस, ये लेवल की, राइट? यस, हाँ, तो ये क्लियर है? ये मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्लियर है? मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन बोलो। मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्लियर है इसका? कि मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? कि कॉस्ट ऑफ कुकिंग ऑयल इनटू कंजम्पशन ऑफ कुकिंग ऑयल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन कुकिंग ऑयल ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, अभी हमें दिया है कि ये, अच्छा, अभी आपको ये ये होना चाहिए स्ट्राइक, कि दो वेरिएबल से और उनका हमें प्रोडक्ट दिया है एक्सपेंडिचर, राइट? ये वेरिएबल 40% से इंक्रीज हुआ, राइट? राइट, कंजम्पशन ऑफ ऑयल डिक्रीज हुआ 20% से। तो एक्सपेंडिचर कितने से चेंज होगा? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स विल चेंज्ड बाय हाउ मेनी परसेंटेज? तो ये कौन सा हम यूज कर सकते हैं? कौन सा हमने फॉर्मूला देखा था, यूज हो सकता है ना वो, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट। ये हमें दिया हुआ है इन शॉर्ट इन द क्वेश्चन, तो हम सक्सेसिव परसेंटेज वाला यूज कर सकते हैं। नेट परसेंट चेंज इन द प्रोडक्ट, नेट परसेंट चेंज in the product or in expenditure will be a plus b
प्लस ए बी अपॉन 100। देखो देखो बेसिक एक फॉर्मूला था, उसके ऊपर कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बना जा सकता है। ठीक है, तो हमने हमें पता है कि ए का वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे, ए का वैल्यू +40, बी का वैल्यू -20। ओके, तो 40 माइनस 20 प्लस x, ये 40 है, इनटू -20/100। ये 0 गया 0 गया 0 गया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बीच में। 40 माइनस 20 होगा 20, 4 इंटू -2 -8, सो आपका आंसर आ गया 12%। तो ये नेट चेंज होगा एक्सपेंडिचर के ऊपर 12% पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज। क्लियर? समझा क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब एंड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस क्लियर है? बोलो। इसको और एक तरीका है, आई टेल यू दैट ऑल्सो, बट इज दिस क्लियर? ये हम फॉर्मूला भी क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. दूसरा तरीका आप ये भी सोच सकते थे, ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ कुकिंग ऑयल इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं कॉस्ट लू 10x इनटू कंजम्पशन, लेट से 10y लीटर्स लिया, कॉस्ट इज 10x रुपीज, कंजम्पशन इज 10y लीटर्स, सो एक्सपेंडिचर मेरा होगा 100xy। ठीक है, मैं अगर इसको 40% से इंक्रीज करूं तो कितना होगा इसका? 40%, 10% 1x, 40% होगा 4x से मैं इंक्रीज करूंगा, so cost will become 14x and consumption will gets decreased by 20%। 20% से डिक्रीज करो तो कितना होगा इसका? 20% डिक्रीज मतलब कितना होगा? कितना होगा? 2y से डिक्रीज होगा 8y, राइट? सो व्हाट विल बी माय न्यू एक्सपेंडिचर? 14 into 8, 112xy। So if my 100xy becomes 112y, मतलब कितने परसेंट से मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा? बोलो, कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? 12% से हो रहा है, दिख रहा है। 100xy becomes 112xy, so 12% से इंक्रीज हुआ। So you can use formula also, you can use this way also. Clear? Getting clarity? बोलो। अरे समझा क्या? ओके, ग्रेट। मस्त क्वेश्चन है ये भी, डोंट हरी, एकदम जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा मतलब 8:30 तो हमारा वैसे भी शेड्यूल टाइम होता है, लेकिन मैं थोड़ा शार्प छोड़ूंगा आज, लेकिन कल या जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम ये पूरा कर लेंगे, डोंट वरी। सॉरी, मस्त क्वेश्चन है ये, राइट? द एक्सपेंसेस ऑन राइस, wheat and milk are in the ration. Now ration proportion we have tomorrow, right? बट ये थोड़ा बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? ये कल और क्लैरिटी मिलेगा इसके ऊपर, डोंट वरी। The prices of these articles increased by 50%, 20%, 30% respectively. The total expenses of the family increased by, देखो, the expenses of rice, अच्छा ठीक है, इसके ऊपर परसेंट भी निकाला है। कैन आई कंसिडर द एक्सपेंसेस एज 30x, 120x, 170x? मैं सोच सकता हूँ इस राइस के ऊपर इतना, व्हीट के ऊपर इतना, मिल्क के ऊपर इतना, क्योंकि इनका रेशियो जो है ना वो दिया हुआ है हमें। कैन वी कंसिडर दिस? बोलो, कैन वी कंसिडर दिस? Yes, sir. ठीक है, एवरीवन कन्विंस्ड विद दिस कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं? क्यों अज्यूम किया ये भी समझ लो अभी, क्योंकि हम ये प्राइसेस इंक्रीज करने। अच्छा, पहले हमारा क्या है? टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली इंक्रीज बाय, अच्छा अभी एक्सपेंसेस कितना है फैमिली का? इन दिस केस ये 200 बना 320x, ये एक्सपेंसेस है ऑफ द फैमिली। अगर मैं इसको 50% से इंक्रीज किया, मतलब 15x से इंक्रीज हुआ, 50% ऑफ दिस विल बी 45x इंक्रीज हो जाएगा। 20% से इसको करो मतलब 144x होगा, एंड इसको 30% से हो रहा है मतलब 17 3 51x, 51x से इंक्रीज हुआ मतलब कितना होगा?
221x, ओके ओके। सो अभी फैमिली का फाइनल एक्सपेंडिचर कितना बना? फैमिली का फाइनल एक्सपेंडिचर कितना बना बोलो? 1 + 4 5, 5 5 10, ओके। 2 1 3 4 7 + 4 11, एक कैरी किया, 2 1 3 1 4, ये हो गया 410x, राइट। अभी अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? इज दिस क्लियर? बोलो पहले ये क्लियर है चीज कि हमने क्या किया कि हमने राइस व्हीट मिल्क का जो रेशियो दिया था, हमने अज्यूम किए ये वैल्यूज, ये कॉस्ट हमने अज्यूम किया, टोटल एक्सपेंसेस हमें मिला, लेकिन हमें बाद में दिया है कि ये इंक्रीज किया 50% से, ये इंक्रीज किया 20% से, ये इंक्रीज किया 30% से। हमने इंक्रीज कराने के बाद हमारा इतना वैल्यू आया, अभी वो फैमिली का एक्सपेंडिचर इतना बना है। यहां तक क्लियर है पिक्चर? बोलो, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? अभी हमें क्या निकालना है कि द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट? इतना था, इतना बना, कितने रुपए से इंक्रीज हुआ दिख रहा है? कितने रुपए से इंक्रीज हुआ बोलो? कितना? 320 का 410 हुआ, मतलब कितना? 90x से इंक्रीज हुआ। तो मुझे एक बात बोलो, 320x के ऊपर अगर 90x का इंक्रीज है, राइट, ऑन दिस वैल्यू, इफ दिस इंक्रीज, तो व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज? आप ऐसे भी परसेंटेज निकाल सकते हो, या तो यहाँ पे सीधा अप्रोक्सीमेटली भी आप सोच सकते हो। अप्रोक्सीमेटली कैसे? 10% से इंक्रीज होता, 10% से तो कितना होता? 32। 20% 64, 30% 96, 32 का 32 इंटू 3 के तो 96 होता है। मतलब ये 30% नहीं, 30% से थोड़ा कम। 30% से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है बोलो? ये 320 के ऊपर अगर 90 का इंक्रीज है, जो कि 30% से थोड़ा कम होना चाहिए, ओनली बी सेटिस्फाइज दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। समझा क्या क्वेश्चन? बोलो। This require a knowledge of ratio and proportion a little bit, which we are going to cover tomorrow. But I hope you are understanding this. Clear? Okay. Yes, sir. Okay. शिवानी, ये क्लियर है कि हमने अज्यूम किए ये वैल्यूज राइस व्हीट और इसके, ये हमने अज्यूम किए, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बना 320x, ठीक है। फिर ये कुछ परसेंट से इंक्रीज हुआ, ये कुछ परसेंट से इंक्रीज हुआ, ये कुछ परसेंट से, ये कुछ परसेंट से। तो हमारा क्या हुआ देखो, इफेक्टिवली हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इतना आया, इंक्रीज होके 410x आया। मतलब कितने रुपए से इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर? कितने रुपए से इंक्रीज हुआ? 90x। अच्छा, इसके ऊपर अगर 10% का इंक्रीज होता, 10% का इंक्रीज होता तो 32x का इंक्रीज होता, 30% का इंक्रीज होता तो 96 का इंक्रीज होता। तो ये अगर 90 से इंक्रीज है, 30% 96 होता, तो हमारा एक्चुअली इंक्रीज जो है वो 30% से थोड़ा कम होना चाहिए। 30% से थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन है। दैट इज हाउ इट इज, राइट। अगर आपको एक्चुअली निकालना है तो आप सीधा ऐसा भी सोच सकते हो कि 320x ये बेस वैल्यू के ऊपर इंक्रीज इज ऑफ 90x, व्हाट इज दैट परसेंटेज? तो ये सॉल्व करोगे तो आपको यही आने वाला, बट नो नीड ऑफ डूइंग दैट। क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो वी आर एंडिंग द सेशन हियर। Please solve that topic test also if possible today, tomorrow, whatever. Please do that. Their solutions are also available there. You can improvise yourself. थोड़ा जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे तो थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगा, ठीक है। धीरे धीरे थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगा। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आप ऐसा मत समझ लेना कि एक डेढ़ डेढ़ घंटे में आप परसेंटेज एकदम क्लियर करोगे, राइट। थोड़ा सा प्लीज पेशेंस के ऊपर संयम रखो। थोड़ा आप नया कुछ सीख रहे हो तो थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन एक 2-2.5 महीने में आप ये एकदम अच्छे से क्लियर करोगे, ठीक है? ठीक है। यस Yes, यस sir. किरण, डेफिनेटली यस। चलेगा। सो गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप बिल्डिंग योर करियर। थैंक यू सो मच। सुहास, 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द अपीयर्ड स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, राइट। तो 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 15 भी, 50% का भी कट ऑफ बहुत सारे कंपनीज का होता है, 15 भी कट ऑफ हो सकता है, राइट, 18 भी हो सकता है, डिपेंड्स।
on these 2-3 factors. 50 to 60%, 50 to 60% cutoff you can consider. Okay. 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 I am ending the session.